one part that I left out in force, I want to discuss it that day, but वो ख़त्म नहीं हो पाया, is, and today we'll be wrapping up force. Force is done from my side. Enough of class that I have taken. Is effect of force. Effects of force. So this is a very common question which comes in grade 8. List down the effect of force. So we'll see them diagrammatically, so it becomes very easy. Number 1, so the first thing, force, and better you jot it down. Force can bring a body to motion from rest. From rest, हाँ, एक एक करके देखेंगे. From rest. सबसे पहले देखेंगे, अगर आप रेस्ट पे हो, सपोज यू हैव अ बॉल आउट हियर एंड द बॉल इज एट रेस्ट एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस, दैट मे बी अ पुश और अ किक, सो द बॉल स्टार्ट्स मूविंग. यहाँ पे बॉल क्या हो जाता है, बॉल मूव करना शुरू हो जाता है, तो ये रेस्ट से आपका बॉल मोशन में आ जाता है. सो दिस इज योर फोर्स. फोर्स कैन मेक अ बॉल गो फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. इसका उल्टा भी पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज कमिंग इन मोशन, यू कैन स्टॉप इट. So force can bring a body from motion to rest. From rest to motion. Rest to motion हो गया. Body from motion to rest हो गया. Body from, अच्छा, body to motion from rest. हाँ, ठीक है ना, body to motion. Force can bring a body in motion to rest. ठीक है ना, a body in motion to rest. So here what is happening? For example, you are cycling. And you apply the brakes, so you are applying a braking force. This body is right now in motion. This body is in motion. This body is in motion, so the body is going this way, and we will now apply a force. This is in motion, right? So we are going to apply a force to it. So let's understand, this body is moving, okay, and then you apply a force. This is a braking force. You apply force from this side, then what happens? The body slowly comes to rest. Let's see very common examples. A ball on the floor, a soccer player kicks a ball from rest to motion. Then a ball has been kicked and a goalkeeper grabs the ball. Ball is in motion and you bring the ball from motion to rest. ठीक है, ये दोनों हो गया. अब तीसरा देखते हैं, third one. Third one is also interesting. Suppose a body is already in motion. This body is already in motion. Very good. This body is in motion. Then if you apply a force, you can actually change its direction. Say suppose the body was going in this direction, right, and you have applied the force in this way, so slowly you will find that the ball has gone in this direction because the ball moves along the line of action of the force. So we say force can change the direction of a body in motion. Very common thing in cricket. One of the most common thing in cricket. This is our cricket pitch, and suppose the bowler is bowling an outswinger out here. The batsman just glides his bat, so he changes the direction and flicks the ball and goes to third man area. ठीक है? The force can change the direction of a body in motion. This is number 3. Number 4 is same. We will say force can change the speed. Can change the speed of a body in motion, obviously. So in many books you will find these 2 points have been combined together and they will write it as force can change the direction and speed of a body in motion. Speed of a body in motion means suppose there is a body, it is moving with a speed v, and then you apply a force in the same direction, so the body now starts to move with a speed v plus say another v dash speed. So the direction, ये समझ में आया ना, velocity increase हो गया. इसका उल्टा भी हो सकता है. देखो, जैसे आप whenever you are cycling and you are cycling with a speed and you want to negotiate a turn, you are not confident of negotiating that turn because you know गिर जाओगे उसमें. So you just apply a little bit of brakes. That is called retarding. Half brakes. It's not, brakes does not mean that any time car will come in the stop. You slow down. So I am moving with a velocity v right now and I start applying a brake. So after some time my velocity becomes v minus some v dash. So the velocity has slowed down. Have you understood this case? This was
Don't mix up the two. Hana and Harshit, have you understood? This was that you were in motion, you completely brought into rest. So if here the speed was v, here it is 0. Out here if the speed was 5, it has been brought to 3. ठीक है, अब जगह हुआ है लिखने के लिए. वकुल थोड़ा इस साइड आ जाओ, कम लिटिल बिट दिस साइड. सृष्टि थोड़ा सा उससे जा पाएंगे 2 सेंटीमीटर्स. हाँ, राइट. नाउ स्पेस. ठीक है. Have you understood the difference between this one? This is slowing down. जिस तरह से हम चलते हुए बॉडी को स्लो डाउन कर सकते हैं, हम चलते हुए बॉडी को स्पीड अप भी कर सकते हैं. बदमाश बच्चा है, साइकिल चला के आ रहे हो, पीछे से धक्का मार दिया, साइकिल और स्पीड हो गया, है ना. या कोई साइकिल चला के आ रहा है तो आप उसको ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाओ, स्लो डाउन कर रहे हो. ये हो गए हमारे 4. और फिफ्थ एंड द फाइनल वन, फोर्स कैन चेंज the shape and size of a body at rest में. गूंदा हुआ आटा, an आटा डो, you want to make it चिपटा, टेढ़ा, लंबा, सीधा. वो आटा डो नहीं समझते, क्ले डो. हाँ नहीं, प्रेशर यहाँ पे बात नहीं करते हैं हम. यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात करते हैं. क्ले डो आपको पता है ना, the most horrible thing that I've ever seen. It smells so yuck. Yeah, it looks good only when you get it as a gift on the birthday. After the next day when you start opening it, उसके बाद वो मिक्स होके पिंक में रेड आएगा, रेड में पिंक आएगा, सीधा लेके डस्टबिन में फेंकोगा. हॉरिबल है. I hate that. और एक और आता है ना, स्लाइम. एक काइनेटिक सैंड भी आता है. Have you seen काइनेटिक सैंड? काइनेटिक सैंड भी एक आता है, वो फिर भी ठीक है. बट as students of science you all should buy some things which are very cheap and good things. अब कभी बाहर जाओगे तो खरीद के रखो. एक मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, एक प्रिज्म होना चाहिए, देन एक कॉम्पास होना चाहिए आपके पास, मैग्नेटिक कॉम्पास, बड़ा वाला, नॉट दैट छोटा, बड़ा वाला. ऐसा डजंट कॉस्ट यू दैट मच. वो सैंडविचों में जाके जो आइसक्रीम खाते हो ना, क्या नाम है इसका, जिलेटो, उससे सस्ता है. 400-500 के आइसक्रीम से ये 150-200 में आपको अच्छे. यू गेट इट ऑन Amazon. Compass is a very nice thing. You can play so many things with it. If you want to love science, one compass, one prism should be there, and one magnifying glass, one digital thermometer you should have. हाँ, magnets होना चाहिए. छोटी छोटी चीजें, इनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हो. Digital thermometer भी एक होना चाहिए. Are we fine so far? So what all did we discuss? ये सेक्शन हम कब पढ़ते हैं? व्हाट इज फोर्स. आज हम फोर्स को बाय बाय कर रहे हैं, फोर्स खत्म हमारे लिए. सो फोर्स इज एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस व्हिच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, राइट, it acts on a body and then it creates either a push or a pull on the body, an effect of push or pull. What are the effects of force? रुकी हुई चीज को चला सकता है, चली हुई चीज को रुका सकता है, चलती चीज को स्पीड में लेके जा सकता है, चलती चीज का दिशा बदल सकता है, रुकी हुई चीज का आकार और साइज दोनों चेंज कर सकता है. अब इसको इंग्लिश में सोच लीजिए. रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, मोशन चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन, रेस्ट चेंज शेप एंड चेंज साइज. सबका एक एक एग्जांपल्स याद रखें. सी whenever you write your answers in your school at grade 8 level, try to always give an example. What is the advantage of it? Say suppose you are grammatically wrong, या फिर आपने मान लो एक गलत चीज लिख दिया है, बट आपका एग्जाम्पल करेक्ट है. लाइक if I am a teacher, I'll give you marks. बच्चे ने समझा है चीज को, पर एग्जाम्पल लिखते इतना पैशनेट मत बन जाओ. लाइक से फॉर एग्जाम्पल से अत्रेय, ही लव्स फुटबॉल. Example short and concise. When Roberto Carlos is placing the ball and getting ready for that free kick, Fabian Barthez is waiting. He runs back, kicks the ball. Rest ball has come. अरे बाबा जीरो ही मेरे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? ये मेरे साथ ये मिस्टेक होता था. I used to be very passionate with cricket. एग्जाम्पल ही ऐसा देता था, टीचर कहता था थोड़ा शॉर्ट लिख ले. समझ में आ गया? भावुक मत बन जाओ. ठीक है, चले आगे. आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे, प्रेशर. एंड टुडे आई विल गिव यू अ वर्कशीट. एक वर्कशीट भेजूंगा, उसको आप लोग कीजिएगा. थोड़ा सा उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. दैट वर्कशीट में बी लिटिल बिट अबव योर एज, बट इट हैज नथिंग दैट यू हैव नॉट लर्नड हियर. अपना दिमाग लगाना, ठीक है. जैसे नेट फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे. कोई आपको इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, तो आपके ऊपर नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, वो सब आप सीखेंगे. तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू गो अहेड.
Any question of anyone about force before we leave? Salient points अगर हम force की बात करें, force का definition आपको आना चाहिए, force के effect आपको आने चाहिए, force एक vector quantity होता है, force का ऐसा unit न्यूटन होता है, force दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्चुअल, नॉन कॉन्टैक्चुअल। कॉन्टैक्चुअल में हमने दो एग्जांपल्स देखे हैं, फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल। नॉन कॉन्टैक्चुअल में हमने दो देखे हैं, फ्रिक्शनल एंड मस्कुलर। नॉन कॉन्टैक्चुअल में हमने देखे ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या देखा कि दे कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। Magnetic force is the force of attraction or repulsion between two poles of a magnet, that is between two charges. Gravity is the force of gravity that the earth tries to pull everything towards its center. इसके बाद हमने net force के बारे में देखा। One another thing extra that we studied, force, you should always try to understand what is the line of action of force, because the point of application of force always moves along the line of application. And the best way to understand is a snooker table. Snooker table में जब आप billiards table में जब आप hit करते हैं तो आप जिस तरफ hit कर रहे हो that is the line of action, और आपका ball बिल्कुल उसी दिशा में जाता है। कैरम बोर्ड देख लो, कैरम बोर्ड ऑलवेज गो स्ट्रेट। कैरम बोर्ड में आपको कर्व नहीं दिखाई देगा कभी भी, फुटबॉल में दिखाई देता है ना, कैरम बोर्ड में कर्व नहीं है। कैरम बोर्ड में उल्टा हम इस तरह से मारते हैं ताकि टेंजेंट लग के जाए। यू नो व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। देखो ना कैरम बोर्ड का, देखो कैरम बोर्ड में मान लो इधर एक कॉइन है, हमें ये कॉइन को हिट करना है, ठीक है, एंड माई स्ट्राइकर इज आउट हियर, मेरा स्ट्राइकर का पोजिशन यहाँ है, आई कैनॉट चेंज माई डायरेक्शन। अब कैसा रहेगा? आई वोंट लाइक टू हिट इट स्ट्रेट, सो दिस इज ऑल अ गेम ऑफ फोर्स। हम चाहते हैं इस तरह से कि दिस वन गोज एंड हिट्स हियर, सो व्हाट इज सो, तो हम इस तरह से मारते हैं ताकि हमारे यहाँ पे टेंजेंट लग के जाए। इसको टेंजेंट लगने से ये इधर हिट होगा, ये इसके पास जाएगा, फिर ये पूल में भी ये होता है। हाँ यार जरा हाई फाई, हम लोग यार गरीब बच्चे थे, कैरम ही देखते थे, तुम लोग यार पूल वूल देखते हो, बिलियर्ड्स देखते हो, है ना। ठीक है, चलें आगे, चलो। सो टुडे वी स्टार्ट विद प्रेशर। थोड़ा सा बुक के डेफिनेशन से डिफर करेंगे बिकॉज दैट्स द वे यू लर्न इट प्रॉपर्ली। प्रेशर, प्रेशर को जानने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज जानने की जरूरत है, वन इज यू नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई फोर्स वाज थॉट अर्लियर। अनदर थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। ठीक है, पहले हम एरिया जानते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो मैथ्स ही है ना। एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है बेटा? एरिया हमेशा एक 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ 2D मेजरमेंट। 2D मेजरमेंट मीन्स इसमें दो मेजरमेंट्स, 2 measurements will be involved, 2 measurements. They can be either length or width, or they can be length, whatever it is, 2 measurements will always be involved. इसके बिना एरिया नहीं हो सकता है। ज़रा सोचते हैं, सबसे पहले सबसे आसान चीज़ रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल देखो तो रेक्टेंगल कैसा दिखता है सर? इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल होगा। अगर आप इसको लेंथ बोलते हैं तो आप इसको विड्थ बोलते हैं, तो इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू विड्थ। आर यू फाइन? अच्छा, फिर देखते हैं एरिया में, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कोई भी डाउट है मुझे पूछना। एरिया का यूनिट क्या होता है सर? जो भी मेजरमेंट रहेगा उसका स्क्वायर होगा, इट विल ऑलवेज बी स्क्वायर यूनिट। व्हाई डू यू से स्क्वायर यूनिट? क्योंकि सर लेंथ में मान लो सेंटीमीटर है एंड देयर इज अ सेंटीमीटर इन विड्थ। If you are multiplying both, then the centimeter and centimeter are also multiplying. So you will always get a square unit. Now it can be kilometer, square kilometers, meter, square meters, inch, square inch. जैसे हम कहते हैं ना, what is the area of your flat? 1180 SFT, square foot, foot into foot. Never ever write the unit of area as only centimeter or meter. That is the unit for length. In one direction when we measure, then we have one dimension. Like what is the length of this whiteboard? Blah blah feet, blah blah inches, blah blah meters. What is the area of it? This is a rectangle, length into width. So it will be blah blah square. Are you getting it? ठीक है, अब देखो हमेशा 2 डायमेंशन होगा। आप कोई भी शेप ले लो, चलिए हम स्क्वायर का शेप लेते हैं। स्क्वायर तो हुआ ही नहीं, बेकार सा फिगर बन गया। स्क्वायर में कितना होता है? लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज साइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? सर वही L into W लगा लो।
Square is nothing but the Mosika beta of rectangle only, a special Mosika beta whose length and width are same. आप पढ़ के आए हो सर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. हाउ डिड इट कम? सेम लेंथ इनटू विड्थ, बट द लेंथ एंड विड्थ आर सेम, इसीलिए वो साइड स्क्वायर होता है. क्लियर? चलो एक और चीज देखते हैं. ट्राइंगल. ट्राइंगल में ये अगर बेस है और ये अगर हाइट है तो ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हर जगह आप देखोगे एरिया में 2 आइटम आएगा. अब आपका मन बोलेगा सर आप तो गलत हो. लुक एट द सर्कल सर. या लुक एट द सर्कल. सर्कल का एरिया क्या है? पाई टाइम्स आर स्क्वायर. देखो एक बार आर और एक बार आर. मेजरमेंट विल कम ट्वाइस इन एरिया. यू टेक एनी शेप. यस, बेस इंटू हाइट 2 टाइम्स. इट्स नॉट पॉसिबल. 2 बार आएगा ही आएगा कोई भी चीज का. क्लियर हो गया? सो द एरियाज दैट वी विल बी डीलिंग विथ are of certain shapes which will be very familiar with you. Children, do not make a mistake while computing the area, writing its unit, and most important is writing its unit. अब हमने आपको SI units पढ़ाया था क्या स्टार्टिंग में? आपको नहीं पढ़ाया था? नहीं, सारे नहीं. ओके. So the area will always be measured. This will always be measured in मीटर स्क्वायर में हम मेजर करेंगे जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे. अब मीटर स्क्वायर में करने के लिए यू नीड टू नो कन्वर्शन बिकॉज द बुक विल बी हार्श ऑन यू. वो आपको मीटर में देगा नहीं, तो वो आपको बोलेगा कि देयर इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड इट्स एरिया. तो आप एरिया निकालते क्या करोगे? 10 इंटू 5 कर दोगे. हो गया गड़बड़. हमने क्या कहा था? मीटर में होना चाहिए. सो कन्वर्ट दिस. सो हाउ टू कन्वर्ट? ये एक टेबल लिख लो और इसको एक पोएम की तरह याद रखो. मिली मिल गई, सेंटी डेसी, उसके बाद बड़े से लिखो ग्राम, बड़े से लिखो मीटर, बड़े से लिखो लीटर, फिर लिखो कैपिटल में लिखो डेका, हेक्टा, किलो, फिर लिख दो मारो. अब मारो मत लिखना, वो मैं ऐड करता हूँ तो थोड़ा पोएम जैसा लगता है. मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेगा किलो मारो. ठीक है? इसे कन्वर्शन देखो. यहाँ से यहाँ जाएंगे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10. यहाँ से यहाँ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 10. हियर टू हियर विल मल्टीप्लाई बाय 10. हियर टू हियर विल मल्टीप्लाई बाय 10. Here to here will multiply by 10. Here to here will multiply by 10. This will be very handy. So all your job, look, you will be given something say 1 meter. 1 मीटर तक आने के लिए कितना मिलीमीटर चाहिए? 10, 10, 10. 1000 millimeters. Centi comes from the word century. Century means 100. Are you getting it? Century means 100. तो यहाँ पे लिखो 100 centimeters makes 1 meter. Look at here. From centimeter to meter if you have to go, first add 10. तो कितना गया? Decimeter. Another 10. 10 into 10 कितना हो गया? 100. बस. How to go from centimeter to kilometer? 10 into 10 into 10 into 10 into 10. How to go from say meter to kilometer? Meter to kilometer. 10 and kilo always means 1000. किलो मतलब के. आप बोलते हो ना आजकल स्टाइलिश में, how much did your watch cost? 4K. 4K means 4000. जिसको आप बोलते हो नाखून मत खा, 4 grand. जो भी खा रहे हो मुंह में हाथ तो जा रहा है ना. हाँ, वी यूज सैनिटाइजर्स, डोंट टच. यही सीखो सैनिटाइजर. तो टिक 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 सोच रहे हो. ठीक है? 1000 meters make 1 kilometer. ये याद रखना बच्चों, ये बहुत यूज होगा आपका. And 10 millimeters make 1 centimeter. 1000 millimeters. Milli means always 1 by 1000 makes you 1 meter. ये भी याद रखो. If they want to trick you, they'll trick you. Now you are remembering so small from milli to kilo. Do you know बड़ा वाला का फॉर्मूला क्या है? This is 10 to the power 3. You don't know power. That's why power जानते हो? This is 10 to the power 3. बड़ा वाला starts from 10 to the power 18 to 10 to the power minus 18. बहुत बड़ा है वो भी याद हो जाएगा.
एक्सा पीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो 10 to the power 18 to 10 to the power minus 8. ये आपको तो बहुत छोटा सा चीज़ दिखा रहा हूँ. How many attograms add kilo? It starts from exa, peta, tera, giga, mega, kilo. Kilo is 10 to the power 3. Mega is 10 to the power 6. Giga 10 to the power 9. Tera, when you say I have got a 1 TB hard disk, means 10 to the power 12. Peta 10 to the power 15. Exa 10 to the power 18. Kilo, हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो नैनो means छोटा गाड़ी 10 to the power minus 9. नैनो पिको फेम्टो एटो. ये धीरे धीरे आप हायर क्लासेस में करेंगे, अभी दिमाग खराब. सो हैव यू अंडरस्टूड? कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस फर्स्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर एज वेल एज इन मीटर स्क्वायर? कैलकुलेट इन बोथ एंड शो मी. कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, बोथ इन सेंटीमीटर स्क्वायर एज वेल एज इन मीटर स्क्वायर. Try. Sir, the area is 50 meters square and point. 15 कैसे होता है? 50 centimeter square. Okay, 10 into, so 10 into 5 centimeter, it will be 50 centimeter into centimeter makes it centimeter square. Have you understood? But we have to find in meter square. And we'll do now in meter square also. Come darling, let's do in meter square. So 10 centimeters means how many? Look at here. If 100 centimeters, suppose you forgot everything in exam. If 100 centimeters makes it 1 meter, so 1 centimeter should be 1 upon 100. Do you agree? Meter. 100 centimeters make 1 meter. Did you understand this or not? If you have not understood, tell me. I'll teach you again. 100 centimeters make 1 meter. 100 pencils cost 1 rupee. So cost of 1 pencil 1 by 100. ठीक है? तो हमारे 1 centimeter is, so we are getting the conversion. 1 centimeter is 1 upon 100 meters. So 50 centimeters, 10 centimeters. 10 centimeters can be written as 10 into 1 upon 100. Now this becomes meter. Have you understood? उसी तरह 5 को भी convert करो. 5 into 1 upon 100. Now this is meter. Now simplify. 0 0, और इसमें 0 नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. How much is it? 5 और कितना जाएगा? 10 चला गया, 50. Or else if you don't cancel it also, another way you can do is 10 into 5 is 50, 100 into 100 is 10,000. This is meter square. Now you can straight away take out 1 0 and 1 0. Now it is 5 divided by 1000. How to see 5 divided by 1000? Harshit, your answer is absolutely correct. 5 divided by 1000. Easy way. First of all, take 5. 5 means 5 doesn't come alone, it comes with its own point. You are dividing by 1000. Will the number increase or decrease? Decrease. Therefore, make some spaces out here. कैसा? ये हमारा 5 है. 5 has got a point. Make some spaces. How many zeros? 3 zeros. So the point moves 3 places on the left. 1 point, 2 point, 3 point. So the point will come here. So put a 0 here, put a 0 here and a 0. So 0.005, 0.005 meter square. Who has not understood? Please tell me, we'll explain again. 50 times I'll explain. But नहीं समझ के आगे मत बढ़ो, फंस जाओगे. No, 0.5 you cannot get. Why are you getting 0.5? Try and see this step again. We are supposed to calculate in meters. So area will be so and so. How many spaces? You make as many spaces as you want. तुम्हारी मर्जी, जितना चाहिए बना के रख लो. फ्री का है, इतना बना लो. अब आपको कितना है? 10. Now it's divided by 1000. So the point is here. 1000 मतलब 3 zeros, 3 space आएगा. एक space, 2 space, 3 space. इधर point आएगा. बाकियों में 0 बिठाओ और यहाँ पे 0 बिठाओ. उसी तरह मान लो 5 into 1000 था. 5 is being multiplied by 1000. नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा हो जाएगा, है ना? तो 5 तो कभी अकेला आता नहीं है ना, अपने साथ पॉइंट लेके आता है. 1 2
3 4 5 कुछ भी रख लो, पॉइंट कितना जाएगा, 3 स्पेसेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, हाँ 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, और यहाँ पे आएगा, सो 0 0 5000. Sorry, area we got is 50 centimeters. Hmm. So why don't we just convert 50 centimeters to meters directly? No, 50 centimeter square. Okay, very nice. Let me go by his question. Now, more easy way of doing it. His query is very nice query. He tells, I have got the area as 50 centimeter square. Sir, why are you not converting centimeter directly to meter? This is what you are asking, right, Vakul? Yes, sir. Right, very good. So, understand, can I write 50 centimeter square like this? Just see whether you disagree with me. I am writing it as 50 into 1 centimeter square. Is anything, can I write this? Value does not, why no? Sir, because Why no? sir, because 50 this 50 centimeter square is same as 50 into 1 centimeter square. What is 50? What is 50 pence? What do you mean by 50 pence? 50 number of pence. 50 centimeter square, 1 centimeter square, 2 centimeter. How many centimeter squares? 50 centimeter squares. Do you agree or not now? yes. Very good. Can I write this step like this? 1 centimeter square can be written as 1 centimeter into centimeter. Is this understood? I am doing it in baby steps. Centimeter square means centimeter into centimeter. अरे बाबा, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू x, तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना. ये मान लो एक पपी है, पपी, पपी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पपी इंटू पपी. अभी समझ में आया? ओके. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है. बट वी हैव टू गिव आवर आंसर इन मीटर स्क्वायर. बेबी स्टेप्स. ऐसा, अब यहाँ से देखो कैसे, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, बिकॉज वी नो 100 centimeters, sorry, we know 100 centimeters equal to 1 meter. Therefore, 1 centimeter is equal to 1/100 meter. Do you agree? So, instead of centimeter, centimeter, I wrote 1/100. Correct? 50 divided by 10000. Meter into meter is meter square. I have come to what was asked out of me. अब इसको एडजस्ट करने का, let do and let do goes away. 5 divided by 1000 meter square, मतलब 0 point हो गया. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट शुड मूव 3 places, 1 point, 2 point, 3.5 आएगा. Clear now? If you are doing 50 centimeter square directly, if you are just making it 0.5, means you did not handle the other centimeter. That's the most common mistake people do. Nothing wrong. I got 0.5 meters. No, now 0.5 you forget. That is wrong because you are converting only centimeter to meter. अच्छा, कोई ये convert करके दिखाएगा मुझे. 5 meter square is how many centimeter square? Based on this technique, you can do this technique. 5 meter square is how many centimeter square? चलो करते हैं इसको, baby steps. 5 meter square can be written as 5 into meter, can be written as 5 into 1 meter, can be written as 5 into 100 centimeter into 100 centimeter, can be written as 5 into 10,000 centimeter square, which is equal to 50,000 centimeter square. Easy. Clear? Can you do the reverse of this? Convert this to meter square. चलो इसको meter square में convert करते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, then we go to pressure. Let's convert this to meter square. How many? 5, 1, 2, 3, 4, है ना, centimeter square.
This can be written as 5, 1, 2, 3, 4 into 1 centimeter into 1 centimeter. This can be written as 5, 1, 2, 3, 4 into 1 upon 100 meter into 1 upon 100 meter. Now just do kata kati. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 centimeter, sorry, meter square. Okay, we come back to the same thing. साहब लिख नहीं रहे हैं, खाली हंस रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम आएगा तो गलत हो जाएगा। रॉबर्टो कार्लोस, समझो? चलो अब प्रॉब्लम करते हैं। अब हैना एंड हर्षित फाइन? Yes. ओके, चलिए नाउ वी गेट इनटू प्रेशर। बहुत प्रेशर है बच्चे के ऊपर, पता नहीं आजकल स्कूल्स बहुत प्रेशर डालते हैं, बहुत प्रेशर। तो आज प्रेशर के बारे में पढ़ ही लेते हैं। सर प्रेशर डालते हैं, वो एक है जयदीप दास, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। चलो आज प्रेशर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो फिर से बिना डायग्राम के तो कभी साइंस होता नहीं है। तो आइए एक सुंदर सा एक क्यूबॉइड बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाएंगे? क्यूबॉइड। और देखिए क्यूबॉइड जल्दी से कैसे बनता है, एकदम डोरेमोन के गाने के तरह गोलिसा घुमा, है ना, वैसे डोरेमोन जैसा। तो ये किसी ने देखा है कि नहीं डोरेमोन का ये गाना? गोलिसा घुमा, सो राइट। नाउ विल मेक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनाने के लिए सबसे आसान होता है कि आप इसी के ही एक और क्यूब बना दो। वाह सर कितना आसान। क्यूब के ऊपर और एक क्यूब, सॉरी रेक्टेंगल के ऊपर और एक रेक्टेंगल, जस्ट ऐसे बना दो, ठीक है? अब क्या करोगे? अब डोरा द एक्सप्लोरर की तरह सारे कॉर्नर्स को आप ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे। हमने किया, ठीक है? ये लग गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है? ये आपका क्यूबॉइड है। Now cuboid looks like the new shoe box that you got with your shoe. Do you agree? How many faces does a cuboid have? 6 faces. ढुलकी की तरह लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ऊपर नीचे पीछे आगे, 6 faces, ठीक है? हर फेसेस का चलिए थोड़ा सा मेजरमेंट के बारे में देखते हैं, कैसे कैसे मेजरमेंट होता है, क्योंकि यहीं पे आपको ट्रिक करेगा वो लोग। और आप तो गधे बच्चे हो नहीं कि आपको कोई भी ट्रिक कर ले। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। This measurement in common sense is known as the length. Do you agree? Which is denoted say by L, and this is the breadth or the height. Sorry, this is not the breadth, this is the height. This is the height. Height denoted by H. And we also need to have a width of this particular cuboid. तो ये है इस cuboid का width, यानी कि यहाँ से यहाँ. This is known as the width, which is either W. If you are not familiar with width and you want to write breadth, you can write breadth also, but the spelling is BREADTH. breath मत लिखना, breath मतलब श्वास लेना, अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये breadth है, B लिख सकते हैं आप। अगर आपको W पसंद नहीं, मुझे थोड़ा width अच्छा लगता है बोलने में, तो मैंने width यूज किया है। Instead of width, you can also write children breadth. BREADTH, ठीक है ना? breadth, ठीक है? चलो, अब the first difference that you need to understand between the definition of book, any book, and how you are going to learn, and even you should write that and you should tell that in class also. कैसा होता है? प्रेशर का मतलब कितना क्या होता है? प्रेशर is always calculated on a surface. First understand, pressure is always calculated on a surface. मतलब if you are trying to talk about pressure, first of all there should be some surface. आप first एक question पूछो, where do you want to calculate the pressure? Then they say, sir, on a surface. This has got 6 surfaces. Where do you want to calculate the pressure? Sir, I want to calculate the pressure on the top surface. Let me name the top surface as ABCD. Are you able to understand? This is like the AC unit right outside your house. ऊपर का part. समझ में आया ना? ABCD. तो ABCD. तो हमने ये surface select कर लिया है. What is our surface? Our surface is the top surface. And the top surface has a shape which is that of a rectangle. Do you agree?
अभी आप बोलोगे नो सर इट इज लुकिंग लाइक ए पैरेललोग्राम, अरे दिस इज अ आइसोमेट्रिक व्यू, दैट्स व्हाई आप स्केल खा रहे हो, वो नाखून खा रहा था आप स्केल खा रहे हो. सो दिस इज अ rectangle, the top is always a rectangle. If it is a rectangle it should have two dimensions. What are the two dimensions? The length and the width. Do you agree? And this would be my area. How many of you have understood till here? If there is any doubt till here, select the surface. Then our friend Sishti says, no sir, I do not like the surface that you have selected. अच्छा ऐसा क्यों? Sir, I would like to select a surface which is the right hand side of the surface. So Shrishti says she wants the right hand surface. Okay, what is the right hand surface? The right hand surface is also a rectangle, and this rectangle is abasada. This is abasada. So this is what? Sabasara. Right? This is the rectangle. But this is not the right way to name it. The naming should always be clockwise or anti-clockwise. CBRS. CBRS. This is what Shrishti has selected. She wants this surface. तो इसमें area होगा तो क्या क्या आ जाएगा? I think this is a rectangle, so the width will come into picture and the height will come into picture because this portion is the height. ये समझ में आया? This is very important. In question they will change the surface. When the surface changes, the area also changes. Obviously, if we were given to cover this top surface and the side surface, दोनों में एक बराबर पेपर लगेगा क्या? नहीं ना, अलग अलग पेपर लगेगा. इतना समझ में आया? Now if somebody says no, Aryas says I want to take the left hand surface, वो भी यही होगा, वो भी यही होगा. देखो लेफ्ट हैंड सरफेस में क्या है? W into height. But our friend then Ananya says no, I want to take the bottom surface. Same आएगा. Bottom surface is length into this. But there will be a change if you want to take the front surface. What is the front surface? Sir, the front surface is DCSP. It's a rectangle. And very good. It's DCSP. And what will be the area? The length into the height. Very good. तेज बच्चा है, ऐसे पढ़ा के मजा आता है. Length into height. And Tegbir says no, I want the top, I want the back surface. यार back और front में तो कोई change ही ना है. जो front है वही back है. तो L into H. So basically you have three surfaces and they are three cousins. Top का cousin bottom, front का cousin back, left hand का cousin right hand. समझ में आ गया? तो प्रेशर whenever we are talking, we have to first select a surface. किस पे प्रेशर लिखना चाहते हो? सर अभी पहले हम इस पे प्रेशर देखेंगे, टॉप सरफेस पे. ओके, वेरी गुड. सो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेशर एक्टिंग ऑन टॉप सरफेस, है ना? टॉप सरफेस, एंड द टॉप सरफेस इज गिवन बाय ABCD. ओके, 20 seconds break. Let me load some petrol on my pen. Too much of writing is happening. सब तुम्हारे लिए हो रहा है ये सब. हाँ, कुछ भी खराब होता है तो तुम्हारे लिए है ये. कुछ भी अच्छा होता है तो हमेशा वकुल के लिए. उसके जैसा अच्छा लड़का होता ही नहीं है. छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा. बोलो. ऐसा इसलिए कि है. अभी इसमें भी एक जोक सुनाऊंगा, पर अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में. ठीक है? Hannah and Harshit, give me some time. Refueling going on. Strategic time out. Okay, sir. No. IPL जैसा. चलो. So we start again. Now we want to calculate the pressure on the top surface ABCD. तो इसके लिए क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नीचे हमेशा द सरफेस ऑन विच यू वांट टू कैलकुलेट, एरिया ऑफ दैट सरफेस कम्स, एरिया ऑफ द सरफेस. राइट? हैव यू अंडरस्टूड? नाउ द डिफरेंस, ऑल योर बुक्स विल हैव रिटन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस. मैं कहता हूं फोर्स नहीं. We will not give force. Your book will say, I'll tell you what the book will say.
बुक विल से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप हायर क्लास में जाओगे तो ये गलत हो जाता है, दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड। हम लोग इसे चेंज करेंगे, हम इसे बोलेंगे इट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। सर आप मैगी को टॉप रामेन बना दिया। थ्रस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट थ्रस्ट? देयर इज समथिंग। थ्रस्ट का मतलब होता है एक फोर्स ही है बट परपेंडिकुलर फोर्स। ये बहुत मायने रखता है, परपेंडिकुलर फोर्स। बोर्ड देखो, इंटरेस्ट करना है आपको। पर परपेंडिकुलर फोर्स, व्हाट डज परपेंडिकुलर फोर्स मीन्स? से सपोज मुझे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया? दिस इज द सरफेस एरिया। नाउ व्हेन यू से फोर्स, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, लेकिन जब आप थ्रस्ट बोलते हैं तो एक ही फोर्स आएगा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर फोर्स। समझ में आया? 90 डिग्री What is it? Ulta T? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब समझते हो? अरे यार चुप हो जाते हो तुम लोग। परपेंडिकुलर मीन्स a line OX, another line sir Y. If this angle is 90, we say OY is perpendicular to X. Have you understood? So here your force should be perpendicular to the surface. Now sir, how to understand it is perpendicular or not? Take the center line of this surface. इस surface का center line ले लेते हैं, ठीक है? इसका center line कुछ ऐसा है। समझ में आया? center line. If you are perpendicular on this, then you should be perpendicular on this red line. I want it to be perpendicular on this table, so I first find the center line of the table. Or suppose this is the center line of the table, this blue scale, and the force is acting exactly 90 degree. यही प्रेशर में क्वालिफाई करता है। ऐसे आएगा तो नहीं, ऐसे आएगा तो नहीं। आपका किताब कहता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ले ससुरा फोर्स ऐसे आया, thrust per unit area. So our force must be acting exactly vertical on it. This is known as thrust. This force, better we'll write it as perpendicular component of force. Force का perpendicular component, force must be perpendicular, and then you call it as thrust. So if your school ma'am or sir says, what do you mean by thrust? Thrust is a special force which is perpendicular on any surface. समझ में आया? तो अगर ये सरफेस में, मान लो ये सरफेस में प्रेशर कैलकुलेट करना है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? The force should be coming exactly perpendicular to this. So our force should be acting like this, exactly perpendicular on this. So F is the thrust. So we write pressure is given by thrust upon area. And what is the area? The surface area. बस इतना ही याद रखना है। बोलो, वो आपको दिया रहेगा कितना फोर्स है। They'll give you this much force is acting. Find the pressure. हमें तो प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको दो इनपुट चाहिए, एक है फोर्स, एक है एरिया। एरिया आपको नहीं देगा, आपको डिमेंशंस दे देगा। आपने एरिया कैलकुलेट करना है ये समझ के कि कौन सा सरफेस लागू हो रहा है। They won't see, if I am the teacher, I won't give the force drawn like this. I will tell you a force of 20 Newton is acting perpendicularly on one of the sides, on the left side of the cuboid. Calculate the pressure. तब आप क्या करोगे? फोर्स तो आपको बोल दिया परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आई हैव गिवन यू द थ्रस्ट। अब आपको बोला लेफ्ट साइड, मीन्स आप ये एरिया लोगे। तब अगर आपने ये एरिया ले लिया ना, तो एरिया तो कैलकुलेट करेक्ट होगा, लेकिन आंसर में मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे, वो भी बड़े बड़े। मीन्स यू अंडरस्टूड? So then zero pressure will be at the LHS. Right now zero pressure, there is no force. So if we take a book and like So have you understood? Now let's find out what is the unit. Now
Thrust is a type of force. So what is the unit of force? You tell me, you studied. What is the unit of force? Newton. और एरिया का यूनिट मैंने क्या यूज करने बोला था आपको? मीटर स्क्वायर. सो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम कहते हैं पास्कल. रास्कल लिख के मत आ जाना, वो गाली होता है. पास्कल जो है यूनिट होता है, पास्कल. एंड पास्कल इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज PA. सो 1 न्यूटन. अभी से अगर कोई घर में नहीं पड़ेगा ना, वो कुछ नहीं समझेगा. बार बार मैं बोल रहा हूं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. So sometimes they'll ask you, how do you define 1 पास्कल? सुनो मेरी बात. 1 पास्कल क्या होता है, डिफाइन करना है ना. कैसे बोलता है? दुखी आदमी क्या होता है? सर, जिस आदमी के जिंदगी में सारी घटनाएं ऐसी घटे कि खुशी ना हो, उसे दुखी आदमी कहते हैं. 1 पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल इज द प्रेशर experienced by a surface of 1 meter square when a force of 1 Newton acts perpendicular on it. फिर से सुनिए. तो यार पे ये तो कितना है? 5 न्यूटन पे 1 पास्कल बनता है क्या? 1 बोले तो अच्छा, इसको और अच्छे से लिखो. 1 न्यूटन. तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम समझ नहीं. 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर 1 पास्कल. इसका डेफिनेशन को समझो ना. अगर कोई एरिया, व्हाट इज 1 मीटर स्क्वायर? 1 मिनट. व्हाट इज 1 मीटर स्क्वायर? हैव यू गॉन टू अ क्लॉथ स्टोर? रीड एंड टेलर, डिक जैम. कपड़े जब खरीदते हैं तो एक स्टिक रहता है. हैव यू सीन द क्लॉथ स्टिक दैट अ क्लॉथ मर्चेंट हैज? आयरन वाला स्टिक. अरे देखा है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो. आपने कभी कपड़े की दुकान में, दैट इज व्हाट आई से, लाइफ स्किल्स आर पैथेटिक. Please go and visit any sir clothes store. There will be a lot of Dick Jam, Vimal and Reed and Taylor suiting shirtings, or ladies dress material store. You just enter. साहब आपको क्या चाहिए बेटा? बोलो. नहीं, आपका मीटर स्टिक देखना है. वो गाली नहीं देगा. मैं साइंस पढ़ रहा हूँ ना, मैंने मीटर. ऐसा एक लोहे का स्टिक आता है. Suppose somebody tells you go and buy one dupatta 3 meter long. How do you know he has not ditched you? They will take one stick and measure 3 meters and then they will cut it and give it to you. I need to make a shirt. I need 2 meters cloth. How will you make? Anyone, next time you go to Inorbit Mall, there's a Dick Jam or some Raymond store out there. Just walk to the Raymond store. If your parent says, what do you want to buy? No, nothing. I just want to see that meter stick. एक लोहे का stick रहता है. That is 1 meter. So think about a rectangle or a square, not rectangle, a square, which is 1 लोहे का stick by 1 लोहे का stick. Are you understanding what I'm trying to say? अनन्या, सो रहे हो तुम. 1 मीटर बाई 1 मीटर, ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? व्हाट इज द एरिया? 1 मीटर स्क्वायर. ऐसे एक स्क्वायर पे अगर 1 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलर लगे, वो 1 पास्कल कहलाता है. हाँ, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो सुन के. ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि हम लोग सीबीएसई में ना रट्टू तोते की तरह से इसको रटना शुरू करते हैं. इसका मीनिंग ही नहीं समझते. वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग. What is 1 पास्कल? 1 पास्कल आने के लिए 1 न्यूटन फोर्स चाहिए. ओके, 1 न्यूटन फोर्स. और क्या चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर. अब दोनों में रिलेशन क्या है? सर 1 मीटर स्क्वायर को खड़ा करो. अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? सर कपड़े की दुकान में जो रॉड आपने देखा है ना, उसी का लेंथ, उसी का विड्थ. सो इट इज 1 मीटर स्क्वायर. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 मीटर, एक एडल्ट आदमी का इतना पोर्शन 1 मीटर होता है रफली. सो इतना बाई इतना का एक बोर्ड ले लो, व्हाइट बोर्ड, दैट इज अ 1 मीटर स्क्वायर. उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स 90 डिग्री में लाके लगाओ. अब वो सरफेस पे जो चोट लग रहा है ना, दैट इज 1 पास्कल. चोट लगेगा ना उसको ऑन योर गाल. इफ समबडी गोज अप हियर करता है, आपको दर्द नहीं होगा? होगा ना. और सरफेस को भी तो दर्द लगेगा. आपके गाल में भी कितने तरह से टमाटर गिर सकते हैं, आप सोचो तो. ऐसे मार सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं. जो तमाचा बिल्कुल टपांच गाल पे लगता है ना, वो 90 डिग्री पे लग गया है ना. 90 पे लगना चाहिए. 90 पे यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है. ये 90 90 90. अ लेडी पुट्स अ बिंदी एट 90. 90 के आगे लगाएगा तो बिंदी ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे. समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? प्रेशर
is defined as the ratio of force upon area? No sir, the better word is thrust upon area. What is the difference between thrust and force? Thrust is a special force which acts normally और perpendicular. ये perpendicular जो word है ना, इसका mathematics का एक और नाम है normally. Normal मतलब ये medical वाला normal मत समझना, normal abnormal. We say the line OY is normal on OX. Normal. ये हम पढ़ेंगे आगे, लाइट में भी पढ़ेंगे. नॉर्मल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज 90 डिग्री. दिस इज नॉट मेडिकल वाला, दिस साइंस नॉर्मल. सो प्रेशर इज सेड टू बी द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस विच यू आर कंसिडरिंग. फोर्स, वेल थ्रस्ट. Thrust is a special force which acts at 90 degree. Unit will be Newton per meter square. The better name given to it is Pascal. And how do we define 1 Pascal? We say 1 Pascal is the force experienced by a surface of area 1 meter square when a force of 1 Newton acts perpendicularly on it. Or if you want to remove the word perpendicular, then you use the easy word when a thrust of 1 Newton acts on it. Thrust मतलब ही perpendicular. या तो आप ये बोलो when a force of 1 Newton acts perpendicular on it. और अगर आपको वर्ड्स कम बोलने हैं तो आप बोलो when a thrust. है ना? या तो आप ऐसे बोलो कि when a lazy boy is running on the road, या फिर आप डायरेक्टली बोलो सामर्थ रनिंग ऑन द बोर्ड. बोले तो वो लेजी है, अपने को और अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. Do you understand? A lazy boy running on the road. Express in one word. Samarth. हो गया ना? Easy example. So a force acting perpendicularly or normally, तो आप बोल दो thrust. और ये मत बोलना thrust acting perpendicular. That's a very फालतू English. It's like bury under the ground. अरे bury मेरे पेट में नहीं होता है, वो under the ground ही होता है. Yeah. So bury under the ground is a wrong English. You don't bury under the ground. और कहाँ bury करोगे? मेरे पेट के अंदर. So now have you understood? चलिए प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं. So what is pressure? प्रेशर एक और चीज है. जैसे फोर्स वेक्टर था, प्रेशर लेकिन स्केलर होता है. Pressure is a scalar quantity. यानी when we talk about pressure, we are not supposed to give any direction. Right? Let's put some numericals to it so the problem becomes easy. Let's say let's put this length. इसका length कितना डालूं? Length आप डाल दीजिए 1 मीटर और width डाल दीजिए, नहीं length 2 मीटर and width 1 मीटर कर देते हैं. तो एरिया कितना हो गया? 2 मीटर स्क्वायर. And let the thrust be equal to 10 न्यूटन. तो फिर आपका प्रेशर कितना आ गया? 10 न्यूटन divided by 2 meter square which is equal to 5 Newton per meter square which is equal to 5 Pascal. समझ में आया? ठीक है? Have you understood? Very good. अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आएगा. इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है. Did we understand this? चलो इसको मिटा सकता हूँ. चलो थोड़ा सा मिटाता हूं और मिटा के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं. आइए. और आपको आज जाने से पहले मजेदार चीजें. प्रेशर. तो प्रेशर को हमने क्या देखा? प्रेशर इज थ्रस्ट. थ्रस्ट बोले तो कौन? सर फोर्स का एक स्पेशल बच्चा. फोर्स अपॉन एरिया. अब आप बोलो एक रैशनल नंबर लेते हैं P अपॉन Q और P को Q से डिवाइड करने से मान लीजिए आंसर C आता है. ठीक है ना? नींद आ रहा है, पेन घुसा तो मुंह में. P को Q से डिवाइड किया तो C आता है. ठीक है? अगर C को बढ़ाना है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लो. ये है आम, मेरा फेवरेट एग्जांपल. ये है आम, ये है खाने वाले बच्चे और ये है हिस्सा पर बच्चा. अगर आपको हिस्सा बढ़ाना है तो आप यहां क्या चेंज करेंगे? I want more hissa of arm in my, more share of arm with for me. What should I do? आम बढ़ा दो, लेकिन साथ साथ बच्चे भी बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा. तो एक चीज क्या कर सकते हैं? सर बच्चों को फिक्स कीजिए और आम खूब बढ़ाइए. वाह वाह, तो ये बढ़ना शुरू कर जाएगा. वेरी गुड, करेक्ट. अच्छा, और एक क्या कर सकते हैं? सर इसको फिक्स कर दीजिए
और बच्चे घटाना शुरू कर दीजिए तो भी तो मेरा शेयर बढ़ जाएगा. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? P अपॉन Q इज इक्वल टू C. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो कोशेंट अपने आप घट जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? एंड इफ डिनोमिनेटर घटता है तो कोशेंट बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड यू डोंट टच दिस, यू डोंट टच दिस. एंड इफ यू डोंट वांट टू टच दिस देन इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा. इसको 5 बच्चे हैं हमारे क्लास में, हमें चाहते हैं कि पर बच्चा शुड ईट मोर आम. Sir, will the number of kids increase? No, no, no. There will be 5 every day. But I want them to have more mangoes. Then bring more mangoes. Simple. Sir, I could only manage 5 mangoes. Can you get some more? No, sir, not possible. But I want the number of children should be eating, number of mangoes each child gets should be more. Okay. Throw the children out of the house. Reduce the number of children. You get more mangoes. समझ में आया? अब ये सब कहानी क्यों बताया? जरा यहाँ देखो. ये जो हम कहते हैं ना, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है. कैसे प्रेशर नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम हर्षित को खड़ा कर देते हैं. हर्षित है हमारा नया गार्डनर. ठीक है, डोंट लाफ. हर्षित यहाँ पे, हाँ चाचा बताइयो कैसी, बहुत फसल खराब आ रहा है. ये हर्षित हमारा गार्डनर है. और हर्षित के हाथ में एक गार्डनिंग होज है, ऐसा गार्डनिंग होज है. ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ टैप. ये ऐसे टैप में कनेक्टेड है. देखो कितना साइंस समझ में आएगा. टैप में कनेक्टेड है. और यहाँ पे क्या है? जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है ना, ऐसा फूल खिला है. और हर्षित चाहता है कि इन फूलों में खूब पानी दे. ठीक है, तो यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे हम इसको खड़ा कर देते हैं, दिस डिस्टर्बिंग चाइल्ड, वकुल. सो वकुल इज स्टैंडिंग हियर. तो हर्षित इज टेलिंग, अरे पानी पहुँच नहीं रहा है, प्रेशर बहुत कम हो गया है. तो ही इज टेलिंग वकुल, अरे वकुल भैया थोड़ा सा टैप बढ़ाइए, टैप बढ़ाइए. देन वकुल इज सेइंग मैक्सिमम में है, मैक्सिमम. दैट मीन्स जो फोर्स आ रहा है ना वो मैक्सिमम में है, अब कुछ नहीं कर सकते. बट ही स्टिल वांट्स टू वाटर दिस प्लांट. व्हाट इज द कॉमन सेंस ही विल डू? अरे कॉमन चीज बोलो ना. ये पीटूंगा पकड़ के, स्ट्रेट कर देगा. कभी नलके से पानी, कभी नलकी से पानी, कभी पाइप से किसी को भिगोया है? हाँ, उंगली डाल देगा. सो व्हाट इज ही डूइंग एक्चुअली? जरा सोचो. ये है पाइप का ऑरिफिस. ऑरिफिस मीन्स दिस ओपनिंग. दिस ऑरिफिस हैज एन एरिया A. सो व्हाट डज आवर हर्षित डू? हर्षित अपना फिंगर लाके इतना पोर्शन ब्लॉक कर देता है. तो उसने एरिया को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया ना. उसने एरिया को रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया भाई साहब? बढ़ गया. पानी बिल्कुल चला गया यहां तक. कॉमन बात. और अगर हर्षित बोले नहीं मैं उंगली से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे फिर भी ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो फिर नलकी का प्रेशर बढ़ाओ. मीन्स हर्षित इज सेइंग नो नो नो, आई वोंट डू दिस, आई एम नॉट सपोज टू डू ऑल दिस. देन ओनली वे यू कैन इंक्रीज दिस इज बाय इंक्रीज द फोर्स. हाँ, in Punjabi there is a word called faltu diya galla, means nonsense talk. That is what you are doing. Your query has no relevance with what I am teaching. No. I will take the hose, tie you and keep you in one place. Will you be happy? Okay. This is one example. Did you understand? Did you like this example? देखो इसमें प्रेशर का ही काम हो रहा है. आप एरिया रिड्यूस. सो कॉमन सेंस हम क्या करते हैं, जब हम पानी देते हैं तो हम ऐसे दबा देते हैं. आपने एरिया को रिड्यूस कर दिया है ना. सबके घर में टॉयलेट में फॉसेट है. अभी हंसते शुरू कर दे रहे हो. टॉयलेट में फॉसेट है, यू नो फॉसेट, जिसको आप जेट स्प्रे बोलते हो. फॉसेट के अंदर देखे हो कैसे थोड़े थोड़े होल्स रहते हैं. पानी तो सेम आ रहा है ना. बकेट का टैप जब भरता है, यू हैव गॉट दिस बिग एज अ टैप होल. बकेट के टैप से पानी आराम से गिरता है, फॉसेट से प्रेशर से आता है. वाई? शावर सेम वाटर इज कमिंग, बट यू आर अलाउइंग द वाटर टू कम आउट विद लॉट ऑफ तकलीफ. प्रेशर बढ़ गया. एक और सुंदर सा एग्जांपल, ये सुनने के बाद तो और खुश हो जाओगे. देखो, ये देखो, ये है हमारा बच्चा अपर्णा, नहीं अनन्या. ये अनन्या है बेचारी. ठीक है, ये अनन्या है. अब देखो स्कूल ने इसको कितना तकलीफ दिया है. बहुत भारी बैग दिया है इसे, बहुत भारी बैग लेके स्कूल जाना है इसको. ठीक है ना. अब ये मान लो इसका स्कूल बैग है, वेरी हैवी स्कूल बैग.
तो स्कूल बैग का प्रेशर किस तरफ, फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, नीचे एक्ट कर रहा है, और इसका स्ट्रैप्स इसके बैक के कंधे के ऊपर है। डू यू एग्री? ठीक है, तो इसका मतलब द फोर्स इज एक्टिंग हियर, अल्टीमेटली द फोर्स इज एक्टिंग ऑन आवर कंधा ना, कंधे पे चोट आ रहा है। अब आप सोचो स्कूल बैग्स में इस स्ट्रैप को मोटा क्यों देता है? क्योंकि यहां मोटा करने से एरिया बढ़ गया। वेरी गुड, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर का क्या हो गया? प्रेशर घट गया। यही अगर किसी को मान लो स्कूल बैग नया आया है, वायर्ड नूडल स्ट्रैप जैसा, बस दोनों हाथ गब्बर सिंह की तरह कट जाएगा, बिकॉज द एरिया इज लेस, द प्रेशर विल इंक्रीज, हर बोथ द लिम्स विल जस्ट टेयर ऑफ, कट के दो टुकड़ा आ जाएगा। अच्छा, हैव यू सीन द Amazon एंड द बिग बास्केट गाइज हु कम टू योर हाउस, दे हैव बिग बैग्स, उनका स्ट्रैप्स देखना ये मोटे मोटे होते हैं। द रीजन इज द मोर मोटा स्ट्रैप दैट यू हैव, द मोर इज द एरिया, सो द प्रेशर इज लेस। क्योंकि वजन तो हम कम नहीं कर सकते। अगर अनन्या कम किताब ले गई तो बोलेगा गेट आउट ऑफ द क्लास, बुक तो लेके ही जाना है। फोर्स पे कंट्रोल नहीं है। अच्छा, प्रेशर कम करो। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूं। ये देखो, ये फिर से हमारे किसान भाइयों सुनो सुनो, ये अपना मान लो अपना ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के व्हील्स देखे हो कैसे होते हैं? सॉरी, ट्रैक्टर के व्हील्स देखे हो? ट्रैक्टर का व्हील कितना वाइड होता है? ट्रैक्टर इज वेरी हैवी और ट्रैक्टर कैन पुल अ ट्रक। अगर ट्रैक्टर का व्हील बड़ा नहीं होगा, ट्रैक्टर कैसे जमीन पे चलता है? गीली जमीन पे ज्यादा चलता है, बिकॉज इरिगेशन इज हैपनिंग। इफ द ट्रैक्टर इज नॉट हैविंग अ फ्लैट बिग व्हील बेस, देन व्हाट इज हैपनिंग? उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ट्रैक्टर खुद ही जमीन के अंदर सीता मैया की तरह घुस जाएगा। यू गेट इट? एंड नाउ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नाइट बिफोर वी गो, ये सब बच्चा सबसे एंजॉय करता है, सुनो मजा आ जाएगा। So there is a New Year party ball. You understand what's a New Year party ball? Yes, boys and girls dancing, you know, it's Dhinchak environment. So here is a lovely lady. एकदम तो जैसे ही है, सोच लो, a lovely lady, and her name is Miss Stella. Everyone wants to have a dance with Miss Stella, but the condition is Miss Stella is wearing a shoe which girls call as stilettos. Stilettos समझते हो ना? Heels, high heels पहन के आई है। Hip है या मॉडर्न लड़की है, ठीक है? Stilettos. और उसी पार्टी में there is one more person or another organism or a living being जिसका नाम है जंबो। जंबो, ठीक है ना? जंबो भी उसी पार्टी में है। ये है जंबो का पाँव, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जंबो का पाँव है। जंबो भी बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है ना? एंड बाय समहाउ जंबो का जो वेट है ना और स्टेला का जो वेट है वो बिल्कुल बराबर है। बट स्टेला इज स्लिम एंड ट्रिम जंबो, स्लिम एंड ट्रिम जंबो और स्टेला भी स्लिम एंड ट्रिम है। ब्यूटीफुल। एवरी बॉय जस्ट वांट्स टू हैव वन चांस ऑफ डांस विथ हर, ठीक है ना? इसके साथ एक बार डांस करना चाहता है। एक बार अगर स्टेला डांस कर जाए यार, लाइव बन जाए, मेरा इंस्टा रील बना दूं मैं, ठीक है? और ये जंबो भी है। अब यहाँ पे एक लड़का आया और उसको बोला कि किसी एक के साथ ही आप डांस कर सकते हो, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन डांसिंग, दे आर जस्ट डांसिंग फॉर वन नाइट। और डांस भी क्या है? सालसा डांस करेंगे, 1 2 1 2 ऐसे। दे आर नॉट वेरी गुड, सालसा डांस होगा, बट दे आर नॉट वेरी गुड। तो द बॉय हैज गॉट अ चॉइस टू पिक। आप बोलो लड़का किसके साथ डांस करना चाहिए? जंबो के साथ। क्यों? ये खूबसूरत है लेकिन एकदम रॉप चिक, कटरीना कैफ जैसा। फिर भी हाँ, जरा देखो नाचते नाचते, अगर दे आर नॉट गुड डांसर, ये लड़का है, लड़के के पाँव में स्टेला का स्टिलेटोस गिरा, ये ठीक है ना? वेट कितना है? W। एरिया कितना है? द एरिया ऑफ स्टेला स्टिलेटो इज वेरी लेस। एरिया को कम कर दो, एरिया को कम कर, फोर्स नहीं बढ़ता है, फोर्स तो सेम है, फोर्स तो W है, एरिया कम कर दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। लड़का डांस तो करेगा लेकिन आ करके डांस करेगा, इतना चोट लगेगा उसको। वहीं अगर जंबो ने मान लो रख भी दिया अपना पाँव, ये जंबो का पाँव है ना? जंबो के पाँव का एरिया बड़ा है, जंबो का एरिया बड़ा है,
तो जंबो का प्रेशर कितना होगा, कम होगा, आराम से जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ प्रेशर? और एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर छोड़ दो ना, क्या है मजा, क्या बोर लग रहा है क्या? इतना तुम्हारा स्कूल का भी ऐसे बताएगा ही नहीं। चलो अब स्टेला को भी हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल में हम किसको लेंगे? हम फिर से सृष्टि को लेते हैं इस बार लास्ट एग्जाम्पल। देखो, ये सृष्टि के घर में एक नया सोफा आया है। कहाँ से आया है? आइकिया से आया है। वेरी ये आइकिया से सृष्टि के घर में सोफा आया है, वेरी कॉस्टली, ठीक है ना। अच्छा, अब सृष्टि बीमार है? नहीं, बीमार नहीं है, सृष्टि बीमार नहीं है। सृष्टि बदमाशी कर रही है घर पे, ठीक है। बदमाशी करने पे, और सृष्टि, ये हमारी सृष्टि है, तो सृष्टि का बॉडी वेट जो है ना वो समथिंग W है। और सृष्टि क्या कहती है? मम्मी देखो कितना सुंदर ट्रैम्पोलिन है ये, ऐसे 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 जंपिंग कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ से सृष्टि की मम्मी है, ये सृष्टि की मम्मी, फ्राउनिंग फेस, क्या कर रहे हो? सो ऐसा करते करते क्या हो रहा है? द सोफा इज एक्चुअली बेंडिंग अप एंड बेंडिंग डाउन। लेट्स ट्राई टू थिंक। Srishti has got a weight W. So what is the pressure Srishti is exerting? Srishti is exerting W upon some area between the 2 feet. And what is the area between the 2 feet? This is her leg, 1 feet, and this is her leg. इतना सा एरिया है ना? तो इसको A मान लेते हैं। This is A. इतना सा प्रेशर दे रही है। सोफा तो बर्बाद हो रहा है, ठीक है। फिर गर्मी आई, गर्मी आने के बाद उल्टा सीधा खाना खाया, खाने के बाद सृष्टि बीमार पड़ गई, गॉड फॉरबिडन बीमार हो गई। बीमार होने के बाद द सेम मदर who was angry, now the mother is very sad. वो ऐसा क्या, my daughter is now ill. So कहती है बेटा सो के टीवी देख के खाना नहीं, टीवी देख के सो के खा लो। उसी आइकिया के सोफा में सृष्टि को सुला भी देती है। जरा देखो तो, अब सृष्टि सो गई तो उसका बैक में, her whole back portion is having an area A' and don't you agree the back portion area is significantly larger than the feet area? Obviously. अभी माँ क्यों ये करने में अलाउ कर रही है? माँ का केस देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। द सेम सृष्टि विद W इज नाउ लाइंग विद A' एंड A' इज वेरी हाई, सो द प्रेशर इन द सोफा इज लेस। बेटी भी खुश, प्रेशर भी खुश, मम्मी भी खुश। हाँ, पैर नीचे करके बैठिए, गुड मैनर्स में पैर उठा के नहीं बैठते हैं बेटा, ठीक है। एक दिन ना, you know how Eskimos hunt reindeers? Have you heard? There are 2 weapons. One is called spear and one is called harpoon. I will implement both on you. Okay. So have you understood? 3-4 examples we have seen of pressure. So in order to reduce pressure, please increase area or increase the force. Yes. Sir, this is why sharp knives are... हाँ, sharp knife, we will see that in next. So let's talk about the examples that we saw. The first one that we saw was, why are straps of school bags made thicker? They are made thicker to increase the area so that you can't do anything about the load. At least you can reduce the pressure. Why does a tractor have wide wheels? To increase the area so that the overall pressure on the ground is less. Otherwise tractor will go inside. ठीक है ना? Then a stiletto on dancing will give you much more pain because the stiletto's point of contact will be very less for the same weight, whereas jumbo will give you less pain. And a girl jumping on a sofa is less acceptable to the parent than the girl lying on the sofa. In both the cases it's the same weight, but the same weight is spread over a bigger area. Pressure is less, damage to the sofa is less. समझ में आया? आगे की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड यू बुलेट मैन,